હું એનું નામ કહીશ ત્યારે આપણે શરૂ કરીશું. સો ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આઈ એમ રજત વાની. હું રજત વાની જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ સુરત ઓફિસથી આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. જેમ આપ સર્વે જાણો છો કે આજે આપણે અહીં ભેગા થયા છે હોલમાર્કિંગના નવા જે પ્રસ્તાવના મૂકવામાં આવી છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા એના ઉપર ચર્ચા કરવા માટે. હું આગળ વધતા પહેલા જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના રિજનલ ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બે શબ્દ કહે. નમસ્કાર મિત્રો, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના માધ્યમથી અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીને રિલેટેડ વેબ સેમિનાર આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી હોલ માર્કિંગ બાબતે સમગ્ર ભારત, સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અને જ્યારે ખાસ કરીને સુરત શહેર એ જ્વેલરી હબ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો હોય ત્યારે હોલ માર્કિંગના નવા લો પ્રમાણે, નવા કાયદા પ્રમાણે એને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે અને એનું અમલીકરણ કઈ રીતના સરળ રીતે થાય એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. અમને માહિતગાર મેમ્બરોને કરવા માટેના આજના વેબ સેમિનારની ઉપસ્થિત શ્રી એસ.કે. સિંઘ, હેડ BSI અમદાવાદ, શ્રી સત્યેન્દ્ર પાંડે, BIS સુરત, શ્રી સલીમભાઈ દાગીનાવાલા, પ્રેસિડેન્ટ સુરત જ્વેલર્સ એસોસિએશન, શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, પ્રેસિડેન્ટ સુરત જ્વેલર મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશન, શ્રી નિલેશભાઈ લંગાલિયા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વરાછા કતારગામ જ્વેલર્સ એસોસિએશનનું સ્વાગત કરું છું અને રિજનલ ઓફિસના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી હલો હમલાય છે ને? હા સર. હા રજતા. રિજનલ ઓફિસના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી રજત વાની. હું તો સૌ પ્રથમ ભારત સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જેમની સોનાના આભૂષણના હોલ માર્કિંગ ફરજિયાત કરવા માટે પગલાને એમની જે માંગણી હતી એમને પરિપૂર્ણ કરી છે. એ પગલાને હું જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ વતી હું એમને આવકારું છું અને આ પગલું ગ્રાહ્યલક્ષી છે. એની સાથે ખૂબ પોઝિટિવની બાબત એ પણ છે કે એક્સપોર્ટ ઉપર આ નિયમ બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને એક્સપોર્ટરોને આ હોલ માર્કિંગનો જે કઈ નાના મોટા પ્રશ્નો અમલીકરણ માટે હશે એમાંથી થોડી રાહત મળશે અને ઈઝી રીતે લોકો એક્સપોર્ટ પોતાનું કરી શકશે. આપણે આશા રાખીએ છીએ કે નિયમોનું અમલીકરણ સરળ બનાવવામાં આવશે કે જેથી કરીને ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા તમામ જેમ કે મેન્યુફેક્ચરર, હોલસેલર, રિટેલર અને સરળતાથી અપનાવી શકશે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે સરકાર અને BIS સંસ્થાના આ જોગવાઈનો અમલ મૂકવા માટે એક વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવશે. કારણ કે ખાસ તો જરૂરી એ છે કે ભારતની અંદર ઘણા વર્ષોથી હોલ માર્કિંગ માટેની દરખાસ્તો લોકો વિચારતા, સરકાર પણ વિચારણા કરતી હતી અને ઇન્ડસ્ટ્રીની તરફથી એમનો રિએક્શનમાં કે ભાઈ હોલ માર્કિંગનો નિયમ અત્યારે નહીં અમલીકરણ કરવો જોઈએ, પરંતુ હવે જ્યારે સરકારે નક્કી જ કર્યું છે અને એમની જવાબદારી BIS સંસ્થાને જ્યારે સોંપવામાં આવી છે ત્યારે સરળ રીતે એનું અમલીકરણ થાય અને કાનૂની રીતે એની પ્રક્રિયા પૂરી થાય એની માટેનું સરળ રીતે એમનું નિરાકરણ કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયેલા BISના અધિકારીઓને પણ હું આપના વતી એમને નમ્ર વિનંતી પણ કરું છું. આ સાથે વધારે આપ સૌનો સમય નહીં લેતા આપણે જેમને સાંભળવાના છે, જેમની પાસેથી સમજવાના છીએ એવા આપણા વક્તાઓ પાસેથી આજના આ સેમિનારની માહિતી લઈએ અને જે કઈ માહિતી આજે અહીંથી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એ આપણી સંસ્થાના અલગ અલગ મેમ્બરો જે જોડાયેલા નથી એમને પણ રેકોર્ડિંગના મારફતે આપણે એમને માહિતગાર કરી કે જેથી કરીને આવતા દિવસોની અંદર જે હોલ માર્કિંગની અમલીકરણમાં સરળતા રહે. ફરી આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે વેબ સેમિનારમાં જોડાયેલા છો ત્યારે હું આપ સૌનું જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ દિનેશભાઈ. આગળ વધતા પહેલા હું સુરત જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સલીમભાઈ દાગીનાવાલાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ બે શબ્દ કહે. Respected GJAPC Chairman Shri Dineshbhai Navadiya Sahib, Assistant Director GJAP Shri Rajatbhai, Shri Malcolmbhai, આજના key speakers Shri S.K. Singh Sahib, Shri Satyendra Pandeji, SJMA President Jayantibai, Varacha Kataram Vice President Nileshbhai. હું અને અત્રે હાજર તમામ જ્વેલર્સ મિત્રો
હવે જ્યારે હોલમાર્કિંગનો કાયદો ગેઝેટમાં ઓલરેડી પાસ થઈ ગયો છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી કમ્પલસરી 15 જૂનથી ટોટલ કમ્પલસરી થઈ રહ્યું છે તો આપણે દિનેશભાઈ જેમ કીધું એન્ડ उन्होंने बताया सर ओके लेट्स ट्राई इन हिंदी कि उन्होंने बताया कि ये लॉ तो ऑलरेडी हो गया है एंड वी ऑलरेडी वेलकमिंग ये लॉ क्योंकि और मोस्टली यहाँ प्रेजेंट ऑल द ज्वेलर्स एंड मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स प्रेजेंट इन इंडिया द रेप्यूटेड ज्वेलर्स ऑलरेडी होल्डिंग द ज्वेलर्स बेसिकली द लाइसेंस फॉर हॉलमार्किंग बट अकॉर्डिंग टू द ज्वेलर्स वी ऑलरेडी वेलकम दिस लॉ और इनको हम स्वागत करते हैं कि नहीं लॉ जो गवर्नमेंट ने रखा है उसके लिए लेकिन गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के एक श्योरली विनंती भी करते हैं सर कि एक कोर कमेटी बनाई जाए ज्वेलर्स के नाम से सो ऑल दोस पीपल जो अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं और मल्टीपल नॉर्मली जो क्वेश्चंस है लोगों के माइंड में वो सब चीज का निराकरण हुआ है सर उसमें एंड वी गेट सम पॉजिटिव नोट टू प्रोसीड ऑन द बिजनेस प्रॉपर्ली और कायदा तो जो बनाया सर इट इज मेनली के एंड यूजर्स है ग्राहक को राइट proper quality of gold मिलना चाहिए and but according to this the presentations we expect sir के आप लोग ये जो भी लोगों को problems face हो रहे हैं which we are going to discuss on a later stage तो वो चीज का एक निराकरण भी हो एक core committee बन जाए जो ज्वेलर्स के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो normal problems sir people are going to face उनका एक solution हो जाए so I mean otherwise hallmarking is going to be accepted by everybody and normally ये सब नॉर्मली हॉलमार्किंग को एक सुलझाने के लिए होना चाहिए सर कि नहीं कि ज्वेलर्स उलझ जाए उसमें और काम ही नहीं कर पाए एंड बट अदरवाइज इट इज ऑल रियली वेलकम के एक्सपोर्ट्स में गवर्नमेंट इज नॉट रियली बिकॉज देयर आर मल्टीपल कैरेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इनसाइड आल्सो रेस्ट सर वी एक्सपेक्ट यू टू गिव अस अ गुड इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का एंड थैंक यू ऑल द मेंबर्स हु हैव जॉइंड वी आर रियली हैप्पी कि आज presentations सुनने के लिए सर we almost have more than 300 participants thank you sir thank you so much thank you Salim bhai thank you so much and we value your opinion that we should have one committee which can directly have in dialogues with the government તો હું સર આપને એક અપડેટ આપી દઉં કે એક એક્સપર્ટ કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે જીજેઈપીસી ની લીડરશિપની અંડરમાં જેમાં જીજેઈપીસી ના ચેરમેન અને જીજેઈપીસી ના કન્વીનર મિસ્ટર શ્રીનિવાસન એના પાર્ટ છે એ સિવાય અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી પણ એક્સપર્ટ કમિટીમાં લોકોને જોડવામાં આવ્યા છે અને આ એક્સપર્ટ કમિટી ઇઝ ડાયરેક્ટલી ઇન ડાયલોગ વિથ મિસ્ટર પિયુષ ગોયલ અને ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી અને અઠવાડિયામાં વન મીટિંગ થાય છે એમની સાથે દર અઠવાડિયામાં એક so if you have any questions or you want to convey something to the government you can pass it on to us we will pass it on to our expert committee and there it will be channelized properly to reach to government and the concerned person તો ઘણા બધા એવા બદલાવ હતા જે જરૂરી હતા આપણા જ્વેલર્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ એક પોઈન્ટ હતો કે આટલા હોલમાર્કિંગના અસાઇન સેન્ટર આટલા ટૂંક સમયમાં ઊભા કરવા પણ એક ચેલેન્જ છે તો આ પણ બધા સ્ટેન્ડ્સ જીજેઈપીસી દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે અને લાસ્ટ સેટરડે એક મીટિંગ થઈ હવે આવતીકાલે હજી એક મીટિંગ છે સોમવારે હજી એક મીટિંગ છે પિયુષ ગોયલ સાહેબ સાથે અને કન્ટિન્યુઅસલી વી આર ઇન ડાયલોગ્સ સો યુ કેન also send your suggestions across DJPC. Sure. As per the associations, absolutely. Let's hope they accept our suggestions, sir. Yeah. नहीं तो एटलीस्ट we want to make a simplification process हमको और कुछ नहीं चाहिए सर simplification process which will be easy और एक guidelines के हिसाब से सब लोग कर सके बराबर follow कर सके और दिल से करे काम that's the only motive sir that's it perfect thank you sir, perfect. thank you so much આગળ વધતા પહેલા હું સુરત જ્વેલર્સ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ અને ખૂબ જ એનર્જેટિક વ્યક્તિત્વ ધરાવતા એવા શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બે શબ્દ કહે નમસ્કાર જીજેઈપીસી ના ચેરમેન રિજનલ ચેરમેન દિનેશભાઈ નાવડિયા જીજેઈપીસી ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિલેશભાઈ બીઆઈએસ માંથી એસકે સિંઘ અને સલીમભાઈ દાગીનાવાલા સુરત જ્વેલરી એસોસિએશન ને સત્યેન્દ્ર પાંડેજી ખાસ તો હોલમાર્કિંગ સુરતની અંદર આપણે ફરજિયાત કર્યું અમે એને આવકારીએ છીએ કારણ કે સુરતની અંદર બહુ મોટા પ્રમાણમાં જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે અને અમે મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય છે એટલે અમારી પહેલી જવાબદારી હોય છે કે સારી ક્વોલિટીનું ગોલ્ડ અમે જે 18 કેરેટ કે જે 14 કેરેટ અમે બનાવીએ છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ એ અમારાથી જ શરૂઆત થતી હોય છે કે પ્યોરિટી બરોબર નાખી છે
અને અહીંથી જ કામ આપણું સ્ટાર્ટ થતું હોય છે. તો અમને તો બહુ જ ખુશી થાય છે કે અહીંયા જે જ્વેલરી બનશે એ બધી હોલમાર્કિંગ ફરજિયાતપણે થશે અને બધા જ જે આની અંદર કોઈ પણ મેટલની અંદર ઓછું વધતું કરતા હતા એ નહીં થાય અને કસ્ટમર માટે બી બહુ સારું થશે કે જેને હોલમાર્કિંગ જ્વેલરી જ મળશે એટલે ગોલ્ડ પ્યોરિટીની અંદર એમને ક્યારેય છેતરાવા જેવું નહીં રહે. અને આવનારા સમયની અંદર એક નવી સિસ્ટમ બી લાવી રહ્યા છે BIS કે જેઓ પોતે યુનિક કોડથી કરવાના છે. એ બી સિસ્ટમ બહુ સારી છે. જે સિસ્ટમને યુનિક કોડ પણ એના પ્રમાણમાં ચાલુ કરતા પહેલા જો ગવર્મેન્ટ બહુ પ્રોપર સિસ્ટમથી કરશે તો આ બહુ સરસ સક્સેસ રીતે થશે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કોણે બનાવી છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કોણે કરી છે, કોણે શોરૂમ વાળાએ સેલ કરી છે, આ સિસ્ટમ ખૂબ સરસ છે. પણ એના માટે પૂરું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જો કરશે તો આગળ જતા આપણને ખૂબ બેનિફિટ અને પ્રોસેસ સ્મૂથલી થશે. ખાસ કરીને આપ BIS હોલમાર્કમાંથી બધા પધાર્યા છે એ આપણને વધારે પડતું આ બાબતે નોલેજ આપશે અને ખાસ કરીને આ સેમિનારનો આપણે બધા લાભ લઈએ અને અમે આ બંને વસ્તુને અમે ખાસ સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનના મેમ્બર આવકારીએ છીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ જયંતિભાઈ. ખૂબ સારા પોઈન્ટ્સ આપણે કીધા કે જે UIDA નો જે નવો કોન્સેપ્ટ શરૂ થયો છે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન કોડનો એ ખૂબ સારું છે અને ડેફિનેટલી જીસીસી તરફથી પણ આના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આનું જે વર્ચ્યુઅલ કમોડિટી કહી શકાય એની પર ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જેને કારણે ડેટા લીક નહીં થાય કે જતે દિવસે આના પર કોઈ ડેટાને લીધે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે એના માટે પણ એક જોગવાઈ અને એક રજૂઆત GJPC દ્વારા એક્સપર્ટ કમિટી દ્વારા ગવર્મેન્ટને કરવામાં આવી છે. હું આગળ વધતા પહેલા વરાછા કતારગામ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિલેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બે શબ્દ કહે. થેન્ક યુ રજતભાઈ. GJPCના રિજિયનલ ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, રજતભાઈ, માલકમભાઈ, BIS અમદાવાદ બ્રાન્ચના હેડ શ્રી મિસ્ટર SK સિંહજી, સુરત બ્રાન્ચના મિસ્ટર સત્યેન્દ્ર પંડ્યાજી અને અમારા માર્ગદર્શક અને સાથી મિત્ર એવા શ્રી સલીમભાઈ દાગીનાવાળા, સુરત જ્વેલરી એસોસિએશનના પ્રમુખ, અને મારા મિત્ર સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, આપ સૌ અને સાથે જે પણ જ્વેલર્સ મિત્રો અને ઇન્ડસ્ટ્રીના જે પણ મિત્રો જોઈન્ટ થયા છે જે આ વેબિનારમાં એ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને ખાસ એ કહેવાનું કે જે આ જે કદમ આ GJPC દ્વારા વેબિનારનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ જ સારું કહેવાય અને એક અવેરનેસ આવશે બધામાં. અને જે સલીમભાઈ જેમ કીધું તેમ કે અમે ઓલવેઝ વેલકમ જ કરીએ છીએ કાયદાને અને હોલમાર્કને, ખાસ કે જેથી કરીને ગ્રાહકને પ્યોરિટી જે એ લોકો ખરીદવા માંગતા હોય એ પૂરેપૂરી મળે. પરંતુ સાથે સાથે એમણે જે કીધું કે ભાઈ આ વસ્તુ ગ્રાઉન્ડ લેવલે અને જેમ જયંતિભાઈ કીધું કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પણ થોડી જરૂર છે એટલે એ પ્રમાણે આપણે જે પ્યોરિટી આપવા માંગીએ છીએ એ તો બરાબર જ છે, પણ સાથે અમે પણ મુસીબત ન મુકાઈએ એ પણ થોડું BIS ધ્યાનમાં રાખી અને કાયદાને એ હિસાબે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે કે જેથી કરીને સરળતા રહે અને અમે પણ અમારો બિઝનેસ કરી શકીએ અને સરળતાથી આપણે પ્યોરિટી આપી શકીએ. અને સાથે સાથે આ જે યુનિક આઈડી અને જે ફરજિયાત હોલમાર્કિંગ વાળો કાયદો આવ્યા છે એટલે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પણ આપણી બ્રાન્ડ વેલ્યુ વધશે આપણી જ્વેલરીની. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ નિલેશભાઈ. ખૂબ કહી આપણે આનાથી એક કસ્ટમર અને બિઝનેસમેન વચ્ચેનો એક ટ્રસ્ટ ફેક્ટર વધશે અને આપણી ક્વોલિટીના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ વધશે ને એને કારણે આપણી બ્રાન્ડ વેલ્યુ વધશે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો આપના મંતવ્ય શેર કરવા બદલ. હવે આપણે જે આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે આજનો હોલમાર્કિંગનો એ વિષય પર આગળ વધીશું. મેં શ્રી SK સિંહ साइंटिस्ट हेड ऑफ BIS अहमदाबाद श्री SK सिंह को विनंती करूंगा कि वो अपना मंतव्य शुरू करें. आई होप सर आपने हमारे ज्वेलर्स मित्रों की बातें सुनी होगी और आप आई एम श्योर यू हैव टेकन इनपुट व्हिच यू कैन कन्वे ऑन आवर बिहाफ. So I would please request you to take note of these also and कुछ आई एम श्योर कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंफ्यूजन ऐसे होंगे जो आपके प्रेजेंटेशन के बाद आज सॉल्व हो ही जाएंगे. So over to you sir. Thanks a lot. Good afternoon. Thank you Rajat ji.
सबसे पहले जो चेयरमैन साहब हैं डिफरेंट अलग अलग ज्वेलर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, आप सबका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत अच्छी संख्या में मैं देख रहा हूं कि 220 के आसपास तो पार्टिसिपेंट्स इसमें वेबिनार में डायरेक्ट दिख रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों के साथ एक एक दो लोग और भी हैं। उस हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 350 to 400 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। और इतने व्यस्त समय में से आप सब लोगों ने जो समय निकाला है इसके लिए, उसके लिए एक बार खूब खूब आभार। मेरा प्रेजेंटेशन जरूर इंग्लिश में है, मैं सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मुख्य उद्देश्य ये है इस वेबिनार को आयोजित करने का, इसमें एक तो जो BIS के प्रोविजंस हैं हॉल मार्किंग से रिलेटेड, उनके बारे में बताने का है। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया है भारत सरकार ने, जो अभी जो लेटेस्ट 1 जून को एक्सटेंड किया है 15 जून तक के लिए, उसके बारे में। हॉल मार्किंग बेसिकली कैसे की जाती है दागीना के बारे में, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होनी है ये UHID के लिए, यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए, उसके लिए हमें हॉल मार्किंग का नॉलेज प्रोसीजर का होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो ज्वेलर्स को, अगर जैसे का कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी मैं दूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट मी स्टार्ट। हमारे जो BIS का स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? आवाज आ रही है प्लीज? Yes, sir. Yes, 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 absolutely. ओके। तो जो भारतीय मानक BIS एक्ट जो 2016 जो कि 17 अक्टूबर 2017 को लागू हो गया था, सॉरी 12 अक्टूबर 2017 को, उसके जो प्रोविजंस अपने हॉल मार्किंग से रिलेटेड है उनके बारे में सबसे पहले। सर आपका प्रेजेंटेशन नहीं विजिबल है। प्रेजेंटेशन नहीं है? आपका फोल्डर दिख रहा है सर। एक मिनट। सर प्रेजेंटेशन आप चालू करके फिर शेयर स्क्रीन कीजिए। अभी आप स्टॉप शेयर कर दीजिए एक बार, फिर प्रेजेंटेशन ऑन करके फिर। एक मिनट। अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी इसको Yes, now we सिर्फ can आप see. Yes. बिग स्क्रीन में अगर कर देंगे तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा, अदरवाइज इट्स विजिबल। I think it's visible. We can go ahead. No issue, sir. ओके। तो जो सेक्शन 14 है BIS एक्ट का, इसमें यह दिया गया है कि BIS एक्ट के अंतर्गत इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंक्लूडिंग ज्वेलरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BIS से कंसल्ट करके उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में ला सकती है। यानी वो प्रोडक्ट बिना BIS के रजिस्ट्रेशन के, बिना BIS के सर्टिफिकेशन के इंडिया में नहीं बेचा जा सकता। फिर जो सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत ऑलरेडी ज्वेलरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS के रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत नोटिफाई कर दिया है। सेक्शन 15 जो है उसके अंतर्गत ये प्रोविजन बताता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं हो, वो ना तो इंपोर्ट कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, और ना ही सेल के लिए एग्जीबिशन लगा सकता है अगर उसके पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर सेक्शन 14(1) के अंतर्गत कोई चीज मैंडेटरी हो गई है तो सेक्शन 15(1) के अंतर्गत ये है कि वो ये सारी एक्टिविटीज बिना BIS के रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकता।
फिर इसमें जो सेक्शन 29 है वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, कृपया ध्यान रखिए, ये किसी को डराने के लिए नहीं है। मेन पर्पज ये है कि अगर कोई ज्वेलर जिसके पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अगर BIS हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता है तो उस केस में BIS उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत उसको मिनिमम 1 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है, हाँ, मिनिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या 1 साल के लिए सजा हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। इसलिए BIS का रजिस्ट्रेशन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने के लिए सभी के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा जो QC ऑर्डर है उसके अंतर्गत हाँ, जो हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर 2020, ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था, और जो शुरुआत में इसका डेट दिया था वो 15 जनवरी 2021 था, जो कि बाद में बढ़ा करके 1 जून 2021 की गई थी, जिसे अभी 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो उसके हिसाब से ये अब 16 जून 2021 से लागू होगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें पहला प्रोविजन ये है कि जो भी इंडिया में ज्वेलरी जो भी बेची जाएगी वो हॉल मार्क करके बेची जाएगी, ये पहला प्रोविजन है। दूसरा, जो हॉल मार्किंग होना है उसका वो कौन से IS के अगेंस्ट में होना है, उसमें वो दिया गया है, वो IS 14 इंडियन स्टैंडर्ड IS 1417 है, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स है। तो इसके अंतर जो रजिस्ट्रेशन होना है या कंपलसरी जो किया गया है IS 1417 के अंतर्गत किया गया है, यानी अभी जो सिल्वर ज्वेलरी है जो कि IS 2112 के अंतर्गत आती है वो इसमें अभी शामिल नहीं की गई है। अब इसमें तीसरा आता है कि ये ऑर्डर गोल्ड ज्वेलरी के लिए तो है, लेकिन किस किस टाइप के लिए, कौन कौन से टाइप के आइटम्स इसमें एग्जेम्प्टेड है। इसमें पहला जो एग्जेम्पशन है, कोई भी आर्टिकल जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हो। दूसरा, कोई आर्टिकल जिसका वेट 2 ग्राम से कम हो। फिर कोई जो भी आर्टिकल कहीं ट्रांजिट स्टेज में है, मतलब कंसाइनमेंट में, एक बाहर से इंडिया से बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, हॉल मार्किंग सेंटर में भेजे जा रहे हैं, या फिर सेमी फिनिश्ड स्टेज में है। इसके अलावा मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज में जो भी गोल्ड के आइटम होंगे वो इस नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट किए गए हैं, और गोल्ड थ्रेड से बने हुए जो आइटम है वो भी इसके अंतर्गत एग्जेम्प्ट किए गए हैं। और सबसे लास्ट जो है कि मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल विच इज नॉट सब्सटेंशियली कंप्लीट, यानी जो फिनिश्ड नहीं है, सेमी फिनिश्ड स्टेज में है, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग किया गया है। तो यानी ये इतने तरह के आर्टिकल्स मैंडेटरी हॉल मार्किंग के ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। इसमें सर्टिफिकेशन और इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो सर्टिफिकेशन तो आपको पता है कि सर्टिफिकेशन BIS के थ्रू होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और यूनियन टेरिटरीज के होंगे वो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी। और इस ऑर्डर को कंप्लाई ना करने पर जो प्रोविजंस हैं, पेनाल्टी है, जो कि BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत है। तो ये सारी चीजें इस QC ऑर्डर में ये चारों प्रोविजंस कवर किए गए हैं। अब हम आते हैं कि आखिरकार गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉल मार्किंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले ज्वेलर अपने यहाँ से ज्वेलरी हॉल मार्किंग सेंटर को भेजता है, जिसको कि हॉल मार्किंग सेंटर वाला अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से सेग्रीगेट कर लेता है। उसको देखता है कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, कोई ऐसे आइटम तो नहीं है जिसमें हॉल मार्किंग नहीं की जा सकती, कोई 916 टाइप का मार्किंग तो नहीं पहले से कर रखा है, तो इस टाइप के देखेगा। इसके बाद उसका वे करेगा, नंबर ऑफ पीसेस देखेगा कितने हैं, और आपसे कंफर्म करेगा कि यहाँ टोटल इतने पीसेस आए हैं, और आपको रिसीप्ट इशू करेगा। इसके बाद उसको क्या करना है, हर ज्वेलरी पीस के ऊपर एक नंबर टैग लगाना है और आगे प्रोसेस के लिए बढ़ाना है। तो जो भी ज्वेलरी आप भेजेंगे उसको 100% सारे पीसेस
जो XRF मशीन होती है, जिसको आप टच मशीन भी बोलते हैं, उसमें हर पीस को उसको चेक करना है। नॉर्मली 2 या 3 जगह पर चेक करना चाहिए, ताकि एक फेयर आइडिया लग सके कि ज्वेलरी होमोजीनियस है और सब जगह जो प्योरिटी एटलीस्ट बाहर से XRF से जो आ रही है वो लगभग सब जगह सेम है। अगर वो 916 या इससे ज्यादा आती है तो उस लॉट को फिर सैंपलिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसमें से 10% पीस, कम से कम 10% पीस लेकर के कटिंग मेथड से, स्क्रैपिंग मेथड से, ड्रिलिंग मेथड से करीब 250 मिलीग्राम ज्वेलरी, उसमें 250 मिलीग्राम सोना उससे स्क्रैप करके ड्रिलिंग करके निकाला जाएगा, जिसको फायर एसे मेथड से टेस्टिंग करना है। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे 250 मिलीग्राम लिया, उसको एक्यूरेटली जो माइक्रो बैलेंस होता है उसमें वे करते हैं, उसको लेड फॉइल में डालते हैं, उसमें कुछ सिल्वर ऐड करते हैं और फिर उसकी बटन राउंड गोली टाइप बना लेते हैं और उसको ट्यूपुलेशन फर्नेस में 1050 से 1100 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हीट करते हैं। तो जब इतने टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है तो फिर क्या होगा कि लेड में जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, कापर है और जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, वो लेड में एब्जॉर्ब हो करके और फ्यूम्स के साथ बाहर निकल जाती है। उसमें सिर्फ जो प्योर गोल्ड रहेगा और सिल्वर रहेगा वो बचेगा, जिसकी एक बटन टाइप बनेगी। और बटन को क्या करना होगा कि बाद में फ्लैट करके स्ट्रिप बनानी होगी, उसकी थोड़ी सी एनीलिंग करनी होगी और फिर नाइट्रिक एसिड में 90 डिग्री टेम्परेचर पर 15-15 मिनट के लगभग 2 बार पार्टिंग करना होगा। जब हम नाइट्रिक एसिड में पार्टिंग करेंगे तो क्या होगा, उससे सिल्वर भी निकल जाएगा और फाइनली जो 250 मिलीग्राम टोटल वेट था उसमें से गोल्ड निकल गया, जो कापर या और दूसरी इम्प्योरिटीज थी वो निकल गई, तो फाइनल एक वेट बचेगा, वो फाइनल वेट होगा। उससे फाइनल वेट डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट जब आप करेंगे तो उसका फाइननेस निकल जाएगा, यानी वो 91.6% है या 916 का है। तो अगर पूरे उस एक लॉट लिया हमने, उसका सारा 100% XRF कराया, उसमें कम से कम 10% सैंपल लेकर के फायर ऐसे किया, और अगर दोनों मेथड में उसका फाइननेस 922 कैरेट का है तो 916 से ऊपर आया, तो उस केस में फिर ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क के ये 4 निशान अभी जो बने हुए हैं इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये लगाए जाएंगे। कोई भी लॉट अगर उसका फाइननेस 916 से 22 कैरेट का है, 916 से अगर कम आता है तो उसमें नहीं लगेगा। इसी तरह 18 कैरेट का है तो 750 से अगर कम आता है तो नहीं लगेगा, वो वाला लॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो हमारी हॉल मार्किंग प्रोसीजर होगी। बताने का मेन पर्पज है, ये जो पूरी प्रोसीजर है सैंपलिंग से लेकर के XRF से लेकर सैंपलिंग और फायर ऐसे तक करीब 3 घंटे लगते हैं। इसलिए जब भी आप ज्वेलरी देंगे, अगर हेसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर सही तरीके से उसकी टेस्टिंग करेगा तो उसे कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इससे पहले वो ज्वेलरी हॉल मार्क करके नहीं की जा सकती। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि पूरी प्रोसीजर फॉलो करें, हॉल मार्किंग सेंटर ये इंश्योर करें। इसी तरह जितने निशान अभी फिलहाल मार्क किए जा रहे हैं वो भी वापस ज्वेलरी आने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि ये सारे निशान लगाए गए हैं कि नहीं। अभी जब UHID इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें थोड़ी से परिवर्तन हो जाएगा। BIS लोगो और 22 के 916 के बाद UHID नंबर उसमें मार्क होगा। अब हम आते हैं कि अगर जिन ज्वेलर्स के पास BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो गोल्ड ज्वेलरी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो इंडियन स्टैंडर्ड IS 1417 के हिसाब से करना है, और जो सिल्वर का रजिस्ट्रेशन कराना है वो IS 2112 के हिसाब से कराना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं उसमें, सेल्फ सर्टिफाइड यानी कहीं बाहर से सर्टिफाई नहीं कराना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि आपका जिस नाम से फर्म है, जिस नाम से शॉप है, उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ ROC का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं।
और जो दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप जिस एड्रेस के लिए है उसका एक डॉक्यूमेंट लगाना है। आइडेंटिटी प्रूफ, जो पर्सन साइन कर रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। एक मैप लगाना है जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या एयरपोर्ट से लोकेशन बता सके। और जो टर्नओवर है उसके टर्नओवर के हिसाब से आपको तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगाना है। उनमें से कौन सा सर्टिफिकेट किस पर्पज के लिए यूज होगा? पहला प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म और कंपनी। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, यानी आरओसी का एक डॉक्यूमेंट चल सकता है। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी लग जाएगी। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो सर्टिफिकेट भी लगा दे, सेल्फ सर्टिफाई करके लगा देंगे। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे तो जो पहला डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है इस्टेब्लिशमेंट या फर्म की, वो पूरी हो जाती है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमारा रिक्वायर्ड था, प्रीमाइसेस एड्रेस क्या है, उसके लिए क्या क्या ले सकते हैं। एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली एड्रेस दिया होता है कि कहाँ कहाँ पर है, या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपना शॉपिक्स लाइसेंस या कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या रेंट एग्रीमेंट या लास्ट रेंट रिसीप्ट या सेल डीड या जो भी एग्रीमेंट है आपका शॉप के बारे में, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी जो है, जिसने साइन किया है, मैनेजर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, पार्टनर, उसका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ उसके लिए एक्सेप्ट होता है। इसके बाद रूट मैप हैंड ड्रॉन भी ले सकते हैं, गूगल का भी लगाया जा सकता है। सबसे लास्ट में आता है कि एनुअल टर्नओवर के लिए क्या सर्टिफिकेट लगाया जाए। जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो अपना पिछले फाइनेंशियल ईयर का सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटी रिटर्न लगा दे सकता है। जिसमें किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है, उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगा सकता है। साथ में एक अंडरटेकिंग देगा कि जब भी उसका 40 लाख या जो भी गवर्नमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट होगी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे ऊपर जाएगा टर्नओवर, तो वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमको और रिटर्न देगा। अगर कोई नया फर्म है जो कि अभी स्टेब्लिश हुई है, तो उसके पास निश्चित रूप से 1 साल का टर्नओवर भी नहीं होगा, ना तो जीएसटी का रिटर्न होगा। उस केस में सिंपल एक अंडरटेकिंग उसको देना है कि मेरा अभी नया फर्म है, मैं अभी सिर्फ मतलब जो मिनिमम मेरा टर्नओवर है उसके हिसाब से फीस दे रहा हूँ। अगर मेरा फीस टर्नओवर के हिसाब से बढ़ेगा तो मैं बैलेंस फीस दूंगा। और इसी तरह जो कारपोरेट सर्टिफिकेट है, उनके लिए क्या होता है कि जीएसटी रिटर्न में पूरे कारपोरेट का कंप्लीट टर्नओवर आता है, तो वो अलग अलग आउटलेट के हिसाब से सीए से एडिशनल सर्टिफिकेट देकर भी दे सकते हैं। मतलब अलॉन्ग विद द जीएसटी रिटर्न वो सीए से पर्टिकुलर आउटलेट का सेपरेट सर्टिफिकेट देने का। अब जैसा कल कि आप सब लोग जानते हैं, पुराने भी लाइसेंस रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं। पहले पता था कि आप सब लोग हार्ड कॉपी, डिमांड ड्राफ्ट, वो सब हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा के भेजते थे। अब वो प्रक्रिया पूरी तरह बंद करके ऑनलाइन कर दी गई है। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको सबसे पहले बताए हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है, इसमें रेड से दिखाया है www.manakonline.in, इस पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके वहां पर अपलोड करना है और जो एप्लीकेबल फीस है वो भरना है, तो आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोई भी पेपर आपको ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं है, ना ऑफिस को डिमांड ड्राफ्ट देना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, और जिस समय आप अप्लाई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसी समय इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये है फीस का स्ट्रक्चर ये है कि अगर 5 करोड़ तक का किसी का टर्नओवर है तो उसको 7,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, यानी 9,500 रुपए लगेंगे प्लस 18% जीएसटी। जिसका 5 करोड़ से 25 करोड़ तक टर्नओवर है उसको 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 2,000 एप्लीकेशन फीस है। जिसका
25 करोड़ से और 100 करोड़ के बीच में टर्नओवर है उसको 40,000 अपने रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 2,000 एप्लीकेशन फीस, और जिसका 100 करोड़ से ऊपर है उसका 80,000 प्लस 2,000 एप्लीकेशन फीस और प्लस जीएसटी पे करना है। तो जो टर्नओवर का सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है उसी वजह से है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फी पे कर सको। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे ज्वेलर्स हैं, तो ये है जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 2790, जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको अगर 22 कैरेट ज्वेलरी बनानी है तो उसमें कितना % गोल्ड और कितना % सिल्वर और कितना % कॉपर रखना है। तो 22 कैरेट के लिए 91.66% आपका गोल्ड होना चाहिए। बाकी सिल्वर और कॉपर के अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो 3 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। इसी तरह 18 कैरेट के ज्वेलरी के लिए 75% आपको गोल्ड रखना है, बाकी 16% प्लस 9% सिल्वर या कॉपर, या जो दूसरे 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कोई भी आप रख सकते हैं। इसी तरह 14 कैरेट ज्वेलरी के लिए ये जो 58.5% गोल्ड और ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आप कॉपर रख सकते हैं। ये एक जनरल गाइडेंस के लिए है, आप लोग वैसे ऑलरेडी इस बिजनेस में और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं। इसी तरह कई बार जब हम फिजिकल जो मीटिंग वेबिनार करते थे तो लोग बोलते थे बिना केडीएम के हमको अगर सोल्जर बनाना है तो उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए। तो ये सोल्जर के लिए कंपोजिशन है। सोल्जर एलॉय के लिए 22 कैरेट के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, इंडियम और गैलियम। आप जो कैडमियम पहले यूज करते थे उसकी जगह आप इंडियम यूज करेंगे, तो आपको ये अलग अलग कैरेट की ज्वेलरी के हिसाब से सोल्जरिंग एलॉय का कंपोजिशन आप इसके हिसाब से, और मीडियम है, सॉफ्ट है, हार्ड है, किस टाइप का सोल्जर चाहिए आप ये देखते इस टेबल के हिसाब से सोल्जरिंग का एलॉय बना सकते हैं। इसी तरह ये 14 कैरेट के लिए है। तो ये मेनली बताने का उद्देश्य यही है कि चूंकि अब कैडमियम बैन है, कैडमियम नहीं यूज करना है, तो आपको ये वाला सोल्जर आप यूज कर सकते हैं। जहां तक UHID का है उसके बारे में प्रेजेंटेशन हमारे श्री सत्येंद्र पांडे जी करेंगे। आपको अगर किसी भी तरह का BIS से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो ये जो हमारा एड्रेस दिया गया है इस पर कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको मैं सूचना के लिए बता दूं कि हम लोगों का सूरत में ऑफिस फाइनलाइज हो चुका है और बहुत जल्दी घुड़दौड़ रोड में 2 से 3 महीने के भीतर, मतलब हमने जो BSNL की एक बिल्डिंग थी वहां पर प्रीमाइसेस रेंट हायर करने जा रहे हैं। उसी वजह से मैं अभी मंडे को सूरत में हूं और वो होने के बाद 2 से 3 महीने के भीतर सूरत में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस केस में फिर ज्वेलर्स के लिए और भी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। किसी भी तरह का पॉलिसी रिलेटेड अगर आपको क्वेरी करना है, अपने सजेशंस देने हैं, तो जो हमारा दिल्ली में हॉल मार्किंग डिपार्टमेंट है, हेड हॉल मार्किंग, रूम नंबर 560, मानकालय, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर या hallmarking@bis.gov.in पर आप अपने सुझाव डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है। एक बार पहले सत्येंद्र पांडे जी अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लें, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसका हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सत्येंद्र जी, I would request you to please give demonstration on your portal. सर आप म्यूट पे हैं सत्येंद्र जी। So good afternoon everyone. थैंक यू रजत भाई। तो जैसे साहब ने बताया, आपको सारा डिटेल एक्सप्लेन किया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है जो रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर्ड है उनको हॉल मार्किंग के लिए कैसे देना होता है। तो ये पहले फिजिकली होता था, नाउ द प्रोसेस हैज बीन मेड कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो जिस पोर्टल पे आप
रजिस्टर करते हैं MANAK-online.in, जैसे साहब ने बताया, वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जैसे ऑनलाइन आपने रजिस्टर कर लिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, 5 साल के लिए वो वैलिड रहता है। तो उसी पोर्टल से अब जैसे ज्वेलर्स जो हॉलमार्किंग सेंटर में अपनी ज्वेलरी को देते थे, पहले फिजिकली जाके देते थे और फिजिकली रिक्वेस्ट देते थे, तो दैट हैज बीन मेड ऑनलाइन। फिजिकली तो जाके देना ही है, बट रिक्वेस्ट एंड जो प्रोसेस है दैट कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन। पहले आपको ऑनलाइन इनिशिएट करना होगा, एंड एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो ऑनलाइन हर स्टेप को अपना मानक ऑनलाइन के थ्रू ही डालें। तो बेसिकली ये लाइव लगभग प्रोसेस हो जाता है कि कब कैलकुलेशन में गया, कब मार्किंग हो रही है, कब रिसीव हुआ। इट हैज टू बी पुट ऑन मानक ऑनलाइन। उस मानक ऑनलाइन पोर्टल पे ये ज्वेलर को भी डालना है और हॉलमार्किंग सेंटर को भी डालना है। तो मैं आपको फिर अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। So I hope my screen is visible. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? Yes, sir. It is seen from. Yes. ठीक है, ठीक है। उससे पहले मैं ये देखिए, जैसे ये मानक ऑनलाइन का ये एक्चुअली में ये अभी जो लाइव सर्वर नहीं है, बट ये बिल्कुल मानक ऑनलाइन पोर्टल ऐसा दिखेगा जब ज्वेलर खोलेंगे। तो मानक ऑनलाइन पोर्टल जब खोलेंगे तो यहाँ पे अभी एक्चुअली हॉलमार्किंग के थ्रू जाना चाहिए, बट ये इसमें जो है ये सर्वर लाइव नहीं है, इसलिए लॉगिन जो है मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। कोई ज्वेलर, मैं एक ज्वेलर के आईडी से लॉगिन करता हूँ। तो हॉलमार्किंग में ज्वेलर जाएंगे, वो वैसे जो ये अभी मैंने प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू लॉगिन किया है वैसा नहीं होगा। जब ये सर्वर लाइव होगा तो हॉलमार्किंग जो आपको टैब दिख रही थी वहां से लॉगिन करना होगा। वहां से जाके लॉगिन में अपना यूजर नेम, पासवर्ड जो आपको जिस आपने यहाँ से मिला होगा ऑफिस से या जिससे रजिस्टर किया होगा वो डालेंगे, तो ये आपको स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पे आपको जब स्क्रीन दिखेगी तो आपका लाइसेंस जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जिसका भी, वहां से आपको अगर रिक्वेस्ट करनी है हॉलमार्किंग के लिए, अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्किंग सेंटर भेजना है हॉलमार्किंग के लिए, तो आपको यहाँ ऑनलाइन रिक्वेस्ट यहाँ से डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको अपना ज्वेलर का पोर्टल आपको दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जीएसटी पैन वगैरह सब दिखेगा। ठीक है, तो आपको मान लीजिए गुजरात सूरत के कोई ज्वेलर हैं, ये तो अभी एक एग्जांपल लिया गया है, वो एग्जांपल की तरफ मैं लेके बता रहा हूँ। तो जैसे अगर कोई गुजरात का है तो मैं गुजरात लेता हूँ। गुजरात में कोई सेंटर एनसीएच, मान लीजिए सूरत में एक एनसीएच है, कोई अगर ज्वेलर अपना एनसीएच में भेजना चाहता है तो वो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेगा, अपना सेंटर सेलेक्ट करेगा और क्या उसको हॉलमार्किंग के लिए भेजना है। फिर यहाँ से वो ऐड आइटम्स, आप ऐड आइटम करेंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आएंगे जो ज्वेलरी आपको भेजनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे इयरिंग्स है, बैंगल्स है, नेकलेस, रिंग, नोज पिन, चेन, काफ़ी सारे कवर करने की कोशिश की गई है। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी आइटम हो, तो उसके लिए फिर अदर्स भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। मेजर यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई। तो जैसे इयरिंग्स है, तो इसमें क्या है, इयरिंग अब मान लीजिए ज्वेलर 25 पीसेज इयरिंग्स की दे रहा है, तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालेगा, टोटल वेट डालेगा, 50 ग्राम
वेट हो गया। प्योरिटी अपनी डिक्लेयर्ड प्योरिटी डालेगा, 916 है, 750 है, 585 है। अभी जो 3 प्योरिटी में हॉल मार्किंग का है, बाकी आगे अभी क्या होगा वो पता नहीं, बट प्रेजेंटली ओनली 3 फाइननेस आर आइडेंटिफाइड फॉर हॉल मार्किंग। तो 916, 750, 585 से ज्वेलर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना कुछ कमेंट देना है तो कमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टैग आईडी भी दिख रहा है, तो अगर कुछ ज्वेलर जो हैं वो अगर बड़े जैसे कुछ तनिष्क है या फिर और लोग हैं जिनको हर एक पीस पे अपना खुद टैग देते हैं, इंडिविजुअल टैग देते हैं एक एक पीस का, तो वो अपना यहाँ पे पीस अपना टैग आईडी दे सकते हैं। इसलिए ये ओपन रखा गया है। जैसे तनिष्क मान लीजिए उसने कुछ दिया अपना 1 2 3, वो अपना कुछ टैग देते हैं, हॉल मार्किंग के लिए भेजते हैं, तो दे कीप देयर ओन आइडेंटिटी। हर एक ज्वेलरी की अपनी खुद वो आइडेंटिटी करते हैं, वो टैग देते हैं। तो यहाँ पे वो अपना ज्वेलर टैग भी लिख सकता है, कमेंट भी लिख सकता है। अगर कुछ इंडिविजुअल टैग नहीं दे रहे हैं तो आप ये टोटल क्वांटिटी लिख सकते हैं यहाँ से और सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एडिट का भी ऑप्शन है। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपके पास एडिट का ऑप्शन रहेगा। इसमें आप आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बैंगल्स हो गए, बैंगल्स आपने जो एनी नंबर यू कैन ऐड, कोई भी वैरायटी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट 10-15 પ્રોડક્ટ રેડી કરી નાખશે, પછી આપણે કરી શકશું ને લિસ્ટિંગ કાર્ય। ठीक है, तो अभी मैंने 2 सेलेक्ट किया है। सपोज मैं एक ज्वेलर हूँ, सिर्फ मुझे इयरिंग्स 24 આરએનડી કરે सॉरी नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। शैल आई कंटिन्यू? ओके, तो जैसे मैं Yes, सिर्फ yes. जो ज्वेलरी मुझे भेजनी है, मैंने यहाँ पे अपना हॉल मार्किंग सेंटर चूज कर लिया, गोल्ड चूज कर लिया, यहाँ पे मैंने इयरिंग्स चूज कर ली कि 24 पीसेज मुझे, जिसका वेट 50 ग्राम है और डिक्लेयर्ड प्योरिटी ये है, मुझे यहाँ पे भेजना है। तो मैं यहाँ से ऐड आइटम्स कर सकता हूँ। ठीक है, जितने चाहे उतने। अगर मेरे पास इंडिविजुअल टैग हैं तो मैं उनके टैग के लिए भी दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे आपने देखा ये प्रीव्यू है। ठीक है, रिव्यू भी दे सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। अभी मैंने सबमिट नहीं किया है, जैसे मैंने कुछ डाल दिया और फिर मैं चाहता हूं मैं थोड़ी देर बाद और कुछ वेट कर लूं, कुछ और करना है, तो मैं इसे रख सकता हूं। और जब मुझे लगता है कि नहीं अब मैं सबमिट कर सकता हूं, तो सेव एंड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट ये ऑलरेडी है, इसमें आपका पड़ा रहेगा। आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ये देखिए, ये जो है 5-6, ये यहाँ ये आज वाला ये है 5/6/2021, ये रिक्वेस्ट नंबर 1 जनरेट होगी। इसको आप एडिट कर सकते हैं और फिर फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये सारा सही है देन, और मुझे सबमिट कर देना है ऑनलाइन, तो मैं यहाँ से सबमिट टू AHC कर दूंगा। 18 કેટી ગોલ્ડ ડાયમંડ રિંગ એવું લાગે, गोल्ड डायमंड रिंग लागे रखो आप। जितनी सबमिटेड रिक्वेस्ट है वो सारी यहाँ पे ज्वेलर को इस टैब के अंदर दिखेंगी। जैसे आज 5 जून को मैंने जो है ये कल्याण ज्वेलर जो भी है इसमें मैंने सबमिट की, तो ये सारी मेरी जो है रिक्वेस्ट ये यहाँ पे दिखेगी मुझे। तो ऐसे पहले फिजिकली आप जो है जाते थे लेके ज्वेलर जो है, और वहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट देते थे और वो लेते थे। दैट हैज टू बी डन ऑनलाइन। मानक ऑनलाइन के थ्रू आप उनसे बात कर लें कि हाँ भाई मुझे जमा करना है, हॉल मार्किंग करानी है, इतने पीसेस हैं, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। केवल डिफरेंस ये है कि ये मानक ऑनलाइन के थ्रू अब आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है और इस तरह से आप रेज करेंगे। और जब ये जो है आप सबमिट कर देंगे तब एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर के पोर्टल पे ये विजिबल होना शुरू हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का खोल के दिखाना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कुछ सबमिट किया ज्वेलर को, तो एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को वो सारी चीजें जो है दिखेंगी। अगर मान लीजिए कुछ वेट में प्रॉब्लम आती है जो आपने सबमिट किया है, या फिर कुछ प्योरिटी में इशू आता है, तो ज्वेलर में रिफर बैक, वो आपको रिफर बैक कर सकता है सारी चीजें, और फिर आप जो है उसको जो है यहाँ से सबमिटेड रिक्वेस्ट में आपको क्वेरी रिफर बैक में वो आएगा, और यहाँ से आप उससे चेंज कर सकते हैं उसके रिक्वेस्ट को। मतलब कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे एक कंफर्मेशन पेंडिंग एट ज्वेलर है, तो ये रिफर बैक वाला केस होगा, क्योंकि एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में रिफर बैक किया है। मान लीजिए कुछ वेट पे इशू आया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के पास गया, तो उसने इयरिंग्स में बोला कि ये बोल रहे हैं, ज्वेलर ने बोला कि हमने 8 क्वांटिटी जो है एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को सबमिट की, बट उनको 6 ही मिली, तो उन्होंने आपको रिफर बैक किया। तो आप इस पे अपना कुछ कमेंट दे सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं कि नहीं भाई 6 ही भेजा है, तो फिर वो एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के डैशबोर्ड पे दिखेगा, और वो उसके एक्सेप्ट कर सकते हैं फर्दर अपना एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पे। तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर कुछ गलती हो जाती है सबमिट करने में, तो ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे करेक्ट किया जा सकता है चीज़ों को। वो रिफर बैक कर देंगे एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, और आपके पास वापस ऑप्शन रहेगा करने का। अब एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर ने अगर हॉलमार्क कर लिया आइटम, तो वो सारे जो है HUID भी हॉलमार्किंग सेंटर ही लगाएगा आपके जो ज्वेलरी है, और उसको लगा के जब वो सबमिट करेगा, तो वो आपके ज्वेलर के इसमें अपडेट HUID टैब है, इसमें सारी ज्वेलरी दिखेगी। जितने भी मटेरियल आपने देखे हैं, जिस मान लीजिए 916 प्योरिटी की इयरिंग्स हैं, या फिर बैंगल्स हैं, अन्य इयरिंग, वो सारी जो है यहाँ पे दिखेगी। आप देख रहे हैं, ये आइटम वाइज सारी जो है दिखेगी आपके पास HUID के साथ। और फर्दर फिर ज्वेलर जो है इसको जब उनके पास दिखने लगेगी, तो अपडेट, जैसे अब ज्वेलर के पास आ गई, मैं बीच का प्रोसेस अभी थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने भेजा और फिर आपके पास वापस आ गई, तब का मैं देख रहा हूँ। बीच में हॉलमार्किंग सेंटर ने एसेइंग एंड हॉलमार्किंग की, और फिर आपके पास वापस ऑनलाइन भेज दिया, फिजिकली आपने ले लिया और ऑनलाइन आ गया। तो ये सारे जितने भी आपने आइटम्स भेजे थे, हॉलमार्क होने के बाद आपके पोर्टल में एक यूनिक ID के साथ दिखेंगे। ईच आइटम है उसके पास एक यूनिक ID होगी, उसके साथ आपको दिखेगा। अब आपके वो स्टॉक में ये सारा चीज है। अब मान लीजिए मैं इस आइटम को ज्वेलर जो है किसी को बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रांसफर टू ज्वेलर या सोल्ड टू कस्टमर, ये 2 ऑप्शन आएंगे। ज्वेलर, जैसे कोई बड़ा ज्वेलर है, वो छोटे रिटेलर को देना चाहता है, तो ही कैन ट्रांसफर इट टू ज्वेलर, या फिर रिटेलर ही है जिसने हॉलमार्क कराया है, तो वो कस्टमर को डायरेक्ट बेच सकता है। ये 2 ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए ज्वेलर सेलेक्ट करता है कि मैं इसे छोटे ज्वेलर को दूंगा या फिर रिटेलर को दूंगा, तो यहाँ से अगर वो करेगा तो ट्रांसफर टू ज्वेलर ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जब भी करेगा तो इसमें पूरा डिटेल उसको देना पड़ेगा, मतलब ज्वेलर का नाम, स्टेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही ये सबमिट करेंगे, ये इनके ज्वेलर जो प्रेजेंट जो बेच रहे हैं, उनके यहाँ से डैशबोर्ड से वो सारी चीजें हट जाएंगी। ठीक है, और कस्टमर को अगर बेचते हैं तो ये सोल्ड टू कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनवॉइस नंबर वगैरह वगैरह सारे डिटेल भरने पड़ेंगे। और ये HUID कोड से इट विल बी पॉसिबल टू पूरी हिस्ट्री जो है उस ज्वेलरी की कस्टमर को दिख जाएगी, और BIS को भी दिखेगी कि हाँ किस ज्वेलर ने कब हॉलमार्किंग के लिए दिया, कितनी प्योरिटी आई, और किसको बेचा गया। और इसमें ऑप्शन रहता है हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास फोटो लेने का भी। मीन्स जब वो हॉलमार्किंग करते हैं और पोर्टल पे अपलोड करेंगे ये HUID के साथ, तो उसमें फोटो भी लेने का ऑप्शन रहता है। उस ज्वेलरी का, उस आइटम का हॉलमार्किंग सेंटर
फोटो भी अपडेट करेगा एंड वो फोटो भी कस्टमर को या BIS को जो भी यूनिक आईडी से ट्रैक करना चाहेगा वो फोटो भी दिखेगी वेट के साथ। और कुछ है सत्यन? हाँ सर है, जरा कंप्यूटर हैंग कर गया लैपटॉप। अच्छा, ये एक जैसे मैं बता रहा था, वो अगर बोले सर तो वो हॉल मार्किंग सेंटर से लॉगिन करके भी दिखा देंगे। हाँ हाँ, वो एक बार दिखा दो थोड़ी से कि जैसे वहां पहुंची उसके बाद पार्शियली बता दो कि क्या क्या प्रोसीजर है उसके बाद जो। अच्छा, तो ये PDF फाइल है, अगर इससे भी बता हाँ दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो ये मैं PDF फाइल के थ्रू आपको बताता हूँ कि एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर पे जब जैसे बिल्कुल एकदम प्रोसेस के थ्रू चलेगा, जैसे आपने ज्वेलर ने सबमिट की रिक्वेस्ट हॉल मार्किंग के लिए, वो एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर जब लॉगिन करेगा तो उसके डैशबोर्ड पे ये पूरी डिटेल दिखेगी, है ना। ये किस ज्वेलर से आया, कब आया, कितनी क्वांटिटी आई, वो सारी चीज यहाँ पे विजिबल होगी। फिर ज्वेलर जो है उसको खोलेगा और वेट वगैरह सारा देखेगा कि बैंगल्स कितने हैं, उसका वेट कितना है, और उसको जो है, क्योंकि एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर में एक एक पीस की XRF होती है, तो एक्सेप्ट जो एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर करेगा वो हर पीस को एक यूनिक टैग देके करेगा, क्योंकि अंदर जब एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर के अंदर जब मूवमेंट होती है ज्वेलरी की, तो उसको एक टैग दिया जाता है ताकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, और वो फर्दर वो टैग से ही अंदर जो है SA मास्टर और फर्दर हॉल मार्किंग और लेजर मार्किंग पे उसी टैग से उसको जाना जाता है। तो हॉल मार्किंग सेंटर के पास एक एक आइटम को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, वेट का, प्योरिटी का, और उसको सॉफ्टवेयर से एक टैग भी ऑटोमेटिकली दिया जाएगा। तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है, किसी में प्रॉब्लम है तो हॉल मार्किंग सेंटर उस पर टिक करके उसको रिफर बैक कर सकता है ज्वेलर को, इसमें वेट की प्रॉब्लम है, और फिर ज्वेलर के डैशबोर्ड पे जैसे मैंने दिखाया कि एग्री डिसएग्री दोनों का ऑप्शन आएगा, तो वो वहाँ से सॉल्व कर सकता है। फिर उसके बाद जब रिसेप्शन पे रिसीव हो जाता है तो फिर क्वालिटी मैनेजर उसको देख सकता है, यहाँ इतनी सारी आइटम्स आई हैं, क्वालिटी मैनेजर फर्दर जो है ये उसको यूनिक टैग जो मिलता है यहाँ से सबमिट करता है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, XRF के लिए। तो जैसे ही एक क्वालिटी मैनेजर एक्सेप्ट करता है आइटम्स को, जैसे वो सारे को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी को रिजेक्ट कर सकता है, अगर किसी में प्रॉब्लम है तो बाकी को उसको रिजेक्ट करके बाकी आइटम, मान लीजिए हमने 25 आइटम भेजे, एक को वो रिजेक्ट करता है, किसी बेसिस पे पेंडिंग रखता है, रिफर बैक करता है, तो 24 आइटम को फर्दर आगे हॉल मार्किंग XRF के लिए भेज सकता है। तो XRF ऑपरेटर को जैसे वो रिसीव करेगा तो यहाँ से दिखेगा उसको हर आइटम का, और XRF एक एक आइटम का उसको XRF डिटेल्स भरना पड़ेगा। इसको फर्दर हो सकता है कि अलाइन किया जाए और वो XRF मशीन से ही डाटा ऑटो फीड कर ले, बट अभी फिलहाल XRF ऑपरेटर को ये सारे डाटा भरने पड़ेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि इंटीग्रेट कर दिया जाए जो XRF के डाटा को डायरेक्ट मानक ऑनलाइन ले ले। मानक ऑनलाइन में सारा डाटा ये ऑपरेटर को भरना पड़ेगा कि कॉपर कितना आया, सिल्वर कितना आया, कैडमियम कितनी आई, ठीक। तो यहाँ से सेव कर सकता है और फिर उसके बाद सारे सेव करने के बाद फर्दर सैम्पलिंग के लिए भेज सकता है। सैम्पलिंग मतलब वो 10%, जैसे सर ने बताया कि 10% टोटल जो होते हैं उसको मिनिमम 10% फायर एसे के लिए भेजना होता है। तो स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग जो भी मेथड है तो ये फर्दर सैम्पलिंग के लिए जाता है। तो ये बीच में क्वालिटी मैनेजर का रोल रहता है उसके लिए है। तो अगर ये सैम्पलिंग के लिए जैसे गया तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, ऑटोमेटिकली भी ये सेलेक्ट हो सकता है टैग के हिसाब से। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम नहीं है, अब ये टैग ही चलेगा, हर एक आइटम को, हर एक पीस को एक टैग नंबर दिया गया है, तो उस टैग के हिसाब से फिर सॉफ्टवेयर अपने आप बताएगा कि हाँ इस आइटम को आप जो है ले सकते हो फर्दर सैम्पलिंग में, या फिर उसको चूज भी कर सकता है सैम्पलर अपने हिसाब से। तो इसको जब चूज करेगा
ये सारे प्रोसेस तो मैनुअली करने ही है, लेकिन मानक ऑनलाइन में ये प्रोसेस होता रहेगा साइमल्टेनियसली। जैसे पहले अगर जाता था, पेपर के साथ जाता था, सैंपल आईडी, सैंपल टैग बनता था, वो सैंपल टैग ये भी फिजिकली भी बनेगा और मानक ऑनलाइन के थ्रू भी लाइव एक तरह से ये भी बनेगा। तो जैसे ही ये एसेइंग के लिए जाएगा, फायर एसेइंग के लिए, तो फायर एसे डिटेल्स यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे क्यूपेलेशन, एनीलिंग ऑफ स्ट्रिप, कॉर्नेट, पार्टिंग, ये सब है। तो जैसे ही वो क्यूपेलेशन में डालेगा ऐसे मास्टर, यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेगा, स्टार्ट क्लिक करेगा, टाइम अपने आप ऑटो फीड हो जाएगा, और फिर जब एंड होगा तो एंड यहाँ से फीड करेगा। फिर इसी तरह जब एनीलिंग करेगा तो स्टार्ट करेगा। तो मतलब इसमें टाइम भी फीड हो रही है, कब स्टार्ट हुआ क्यूपेलेशन, कब एनीलिंग हुई, कब पार्टिंग हुई, ये टाइम भी मानक ऑनलाइन पे फीड होगा। फिर फायर एसे सीट जो बनती है, कैलकुलेशन सीट बेइंग की, तो वो यहाँ पे डालनी है। पहले जैसे मास्टर जो उसको अपने रिकॉर्ड्स में रखता था, रिकॉर्ड वो लोग बनाते थे, ना अब ये मानक ऑनलाइन पे ही भरना है। अब सब कुछ यहाँ पे ही डालना है। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो अगर ये पास होता है, जैसे यहाँ पे 916.3 है, डिक्लेयर्ड प्योरिटी 916 है, तो अगर जैसे ये 916 से ज्यादा होगा तो ही ये पास होगा, और जब ये पास होगा तभी ये यूनिक आईडी के लिए आगे जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे में ये फेल आ जाता, मान लीजिए 914 आ जाता, तो ये फेल हो जाता, तो फिर ये फर्दर जो है HUID के लिए और लेजर मार्किंग के लिए नहीं जाता। ठीक है, तो ये जैसे पास हो गया सैंपल, इसको सबमिट कर दी जाएगी HUID के लिए। तो ये रिक्वेस्ट नंबर, जॉब नंबर, या ये HUID यहाँ से जनरेट हो जाएगी। HUID जनरेट होने के बाद ये जो है एम्बोसमेंट, मतलब लेजर मार्किंग के लिए आगे फर्दर सबमिट होगा, और ऑनलाइन इसको देना पड़ेगा। फिर यहाँ से जनरेट HUID, जब लेजर मार्किंग हुई वहाँ से HUID जनरेट हुई। आप देख रहे हैं ये 6 डिजिट का HUID कोड है, वो रैंडम कोड है जो जनरेट होता है, सिस्टम जनरेट करता है अपने आप। तो ये 6 डिजिट का जो है कोड जनरेट होगा, ये यूनिक आईडी कोड होता है, हर एक पीस के लिए कोड जनरेट होगा, यूनिक है एक तरह से। ठीक है, एक बार HUID कोड जनरेट हो गया तो फिर ये फाइनल वेइंग और फोटोग्राफ के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ अपलोड भी कर सकता है। उस समय जब फाइनल वे और डिलीवरी से पहले फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए कुछ स्क्रैपिंग में सैंपल चला गया तो उसका एक्चुअल वेट कितना रह गया, वो यहाँ पे डालने का ऑप्शन रहेगा, और वो यूनिक आईडी के हिसाब से वो ऑप्शन डल जाएगा। तो मतलब सिस्टम में पूरा रहेगा। जैसे ज्वेलर की अगर एप्रीहेंशन है कि हमारा किससे ले रहे हैं और किसी में वेट कम हो गया, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जा रही है आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक टैग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारा किस पीस से हमारा जो है स्क्रैपिंग ली गई है और उसका वेट कितना रह गया स्क्रैपिंग के बाद, वो सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो वेट की भी यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगी। यहाँ पे फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे, एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर के एक या नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी सेव्ड फॉर लाइफ टाइम, वो हमेशा अवेलेबल रहेगी फोटोग्राफ लेजर मार्किंग करने के बाद। और फिर उसके बाद आपको जैसे पता है कि जब सब लेजर मार्किंग हो जाती है तो डिलीवरी वाउचर बनता है और ज्वेलर को दिया जाता है। तो यहाँ से डिलीवरी वाउचर बनाने का भी ऑप्शन है, और यहाँ से डिलीवरी वाउचर बन जाएगा। ये डिलीवरी वाउचर का डिटेल है, तो आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल रहेगी, कितना रिसीव हुआ, कितना कॉर्नेट का वेट था, कितनी स्क्रैपिंग गई, जैसे 1025 मिलीग्राम यहाँ पे लिखा हुआ, तो पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। और फिर ये डिलीवरी वाउचर आपके पास चला जाएगा, और यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर, वो आपके पास ज्वेलर के पास, जैसे मैंने दिखाया कि उनके HUID में दिखने लगता है, और फिर वहां से इसको बेचना है तो वो अपडेट कर सकते हैं फर्दर इसको। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है टोटल ज्वेलर के लिए, एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सबमिट सेंटर को सबमिट करने के लिए, एसेइंग के लिए, और हॉल मार्किंग सेंटर कैसे इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे और रिटर्न करेंगे। ये ऑनलाइन हो गया, अभी प्रोसेस अभी लाइव नहीं हुआ है हालांकि, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव सून। तो फिर तब से ये फर्दर ऑनलाइन करना है। सो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। थैंक यू सत्येंद्र जी, और थैंक यू SK सिंह साहब। बहुत ही डिटेल में आपने एक एक स्टेप समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे।
मेनली हमको एक क्वेश्चन ये बहुत बार हमारे ज्वेलर्स पूछते हैं कि सपोज कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अपना माल होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और तो इसमें किसकी जवाबदेही बनती है कि जो हॉलमार्किंग करवाए? क्योंकि मैन्युफैक्चरर का कहना है कि हमारा कुछ माल एक्सपोर्ट होता है, कुछ माल लोकल मार्केट में जाता है, तो वो कहते हैं कि क्या हम अवॉइड कर सकते हैं हॉलमार्किंग करना? होलसेलर का भी यही कहना है कि हम डायरेक्टली रिटेलर को नहीं बेचते हैं, एंड कंज्यूमर को, रिटेलर्स उस एंड कंज्यूमर को बेचते हैं, तो क्या हम लोग हॉलमार्किंग ना करवाए और नेक्स्ट जो रिटेलर है वो हॉलमार्किंग करवाए? तो क्या ये पॉसिबल है? क्या किसके लिए कंपलसरी है हॉलमार्किंग करवाना? अभी जब तक मैंडेटरी नहीं था तो ये सिचुएशन एराइज नहीं होती थी। अल्टीमेटली रिटेलर के एंड पर कराना जरूरी था, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर ही करा रहा था। अभी मैंडेटरी होने के बाद जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, उससे होलसेलर के पास जो ज्वेलरी जाएगी उसको किस मतलब बेसिकली तो वो ट्रांजिशन फेज की है, उसमें दिया भी है। अगर आप वो देखेंगे जो नोटिफिकेशन है कि अगर ट्रांजिशन फेज की है तो उसमें नहीं होना है, ना हो तो भी चलेगा। तो ये लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल जब ये सिचुएशन उस हिसाब से विजुअलाइज भी शायद नहीं की गई है, तो उसके लिए रूल मेरे ख्याल से अभी एक्स्ट्रा आएंगे कि इस तरह की ज्वेलरी को कैसे ट्रीट करना है। और एक बार यूएचआईडी आ जाएगा तो किसी भी एक स्टेज में जो अगर मतलब इवन, क्योंकि उसमें फिर ज्वेलर टू ज्वेलर कराने की जरूरत नहीं भी है। यूएचआईडी के बाद एक स्टेज में अगर मैन्युफैक्चरर ने खुद ही करा लिया या होलसेलर ने करा लिया तो भी उसकी ट्रेसिएबिलिटी पूरी फुली मेंटेन हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम कम आएगी। अभी फिलहाल मतलब इसके संबंध में प्रॉपर गाइडलाइंस आएंगी तभी हम लोग बता पाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि गाइडलाइंस के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई है, डीजी साहब हमारे चेयरमैन है, और एसोसिएशन अलग अलग लेवल पर सभी जगह के लोग मिल रहे हैं। देखते हैं क्या आता है फाइनली बन। जी सर, ये फिर से वही एक क्वेश्चन अराइज हुआ है जो अपने अहमदाबाद वेबिनार के दौरान अराइज हुआ था कि अगर ये मैन्युफैक्चरर हॉलमार्किंग करवाते हैं और ये होलसेलर को पास ऑन करते हैं, देन होलसेलर रिटेलर को पास ऑन करता है, तो रिटेलर इसको ट्रेस कर सकता है कि ये किस मैन्युफैक्चरर से बना है, बिल्कुल। और होलसेलर का इसमें बीच में से रोल को टेंशन हो सकती है इसमें, तो क्या इसके बारे में कुछ बातें चल रही है? नहीं अच्छा किसके यहाँ बना है ये चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, सीधा मैन्युफैक्चरर पता होगा रिटेलर को, तो वो नेक्स्ट टाइम होलसेलर से क्यों खरीदेगा? ये इशू एसोसिएशन लेवल पे रेज हुआ है वहां पर, ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी सर, हमारे रिप्रेजेंटेशन में ये ऑलरेडी हमने अभी कंसीडर करने के लिए हमारे यहाँ से गया है प्रस्ताव, पर वो वहाँ पे ये चर्चा मतलब हुआ है आप कि लोग नहीं। भी वहां पर वो करिए, बाकी हम लोग जो जैसे मीटिंग कर रहे हैं उसका जो फीडबैक भेजेंगे हम उसमें भी इंक्लूड कर लेंगे ये चीज। जी सर, तो आप क्योंकि भी आपकी सिस्टम में तरफ से अवेलेबल है ये चीज कि हाँ कि एक यूएचआईडी दिया आपने, मार्किंग सेंटर ने उसका हॉल मार्किंग किया था और वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन था या जिसने भी फाइनली कराया हॉल मार्किंग कराया है वो पता चल जाएगा। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मेंटेन रखना जरूरी है या किस लेवल तक उसका वो होगा, तो उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर में क्या प्रोविजन किया जा सकता है वो पॉलिसी मैटर है और वहीं पर होगा। इसका सर ये एक सुझाव ये हो सकता है कि जो भी रिटेलर वगैरह होंगे, उनको जो भी आदमी जो भी चेक करेगा ये सर्टिफिकेट को, वो उससे सिर्फ एक स्टेप ऊपर का ही तक देख पाए, पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी आएगी तो थोड़ा ये कम से कम लेकिन दिक्कत। एच सेंटर तो ट्रेसिएबिलिटी होनी चाहिए जिस सेंटर ने किया है, और मैन्युफैक्चरर लेवल में किस लेवल की चाहिए उसको शायद कुछ वो लगा सकें फिल्टर्स उसके लिए। जी सर, सिल्वर के लिए क्या अभी ये कंपलसरी है हॉलमार्किंग? नहीं हम आपने अगर नोटिफिकेशन मैंने क्यूसी ऑर्डर दिखाया था, अभी फिलहाल IS 1417 यानी गोल्ड के लिए ही किया गया। जी, और जो ऑलरेडी हॉलमार्क हो चुके हैं उन गहनों को फिर से यूएचआईडी कराना कंपलसरी होगा? दोबारा यूएचआईडी करने का जरूरत नहीं।
बराबर। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि Q&A बॉक्स के अंदर वो अपने क्वेश्चंस अगर कुछ है तो प्लीज उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो विल कीप द फोरम ओपन फॉर Q&A। एक क्वेश्चन ये जरूर आ रहा है मतलब आर्टिसन डायरेक्ट हॉल मार्किंग करा सकता है क्या सेंटर जा करके? तो अभी फिलहाल मतलब ये नहीं है कि आर्टिसंस को बीआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं देगा अगर उसके पास आरसीएल वो है, लेकिन अगर वंस इन ए व्हाइल की बात है तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो तो हॉल मार्किंग नहीं करा सकता। उसका जवाब यही है। सर वैसे तो अपने प्रेजेंटेशन में ये हो चुका था कवर, फिर भी एक बार अगर आप ये जो कंपलसरी किस कैरेट तक के, मतलब कितने वजन तक के गहनों पे ये कंपलसरी है और किसको एक्सेप्शनल में रखा गया, अगर ये आप एक बार फिर से बता सकें। ओके ओके, एक मिनट। शुरू से आते हैं। पहला तो कमेंसमेंट है 16 जून अभी प्रेजेंट के हिसाब से। दूसरा कंपलसरी का जो ऑर्डर है उसमें 3 क्लाजेज है। जो पहला कहता है प्रीशियस मेटल्स आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड नोटिफाइड टू बी मार्क्ड विथ हॉल मार्क in the notification of Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, dated 14th June 2018, shall be sold only by registered jewelers through certified sales outlets after fulfilling the terms and conditions of certificate of registration as mentioned in BIS Regulation 2018. पहला तो ये हो गया कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी सेल की जाएगी वो बीआईएस के सर्टिफाइड यानी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के आउटलेट के थ्रू ही की जाएगी। ये पहला प्रोविजन है। दूसरा है प्रीशियस मेटल्स आर्टिकल स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो शैल कंफर्म टू करस्पॉन्डिंग इन इंडियन स्टैंडर्ड गिवन इन द कॉलम 3 ऑफ सेट टेबल। यानी ये टेबल नीचे दी गई है। तो जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उसको जो इंडियन स्टैंडर्ड 1417 2016 या जब भी जो अमेंडमेंट होगा उसको कंफर्म करना होगा। जैसे अभी क्या है कि 1417 में सिर्फ 3 ग्रेड परमिटेड हैं, 14, 18 और 22। तो अभी फिलहाल 3 ही वो होंगे। ये जरूर है कि इसमें अमेंडमेंट के लिए क्योंकि काफी सारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो टेक्निकल कमेटी को मतलब आगे कुछ और ग्रेड इंक्लूड करने के लिए सजेशंस दिए गए हैं। जैसे ही चेंजेस आएंगे वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। दूसरा क्या है उसमें एक रिक्वायरमेंट और दी हुई है, जो प्रोहिबिटेड एलिमेंट है इरिडियम, रूथेनियम और कैडमियम, वो 0.5 पीपीटी से ज्यादा टोटल कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो दूसरा क्लास है वो क्लेरिफाई करता है कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी होगी या आर्टिफैक्ट्स होगा वो IS 1417 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करेगा। तीसरा जो है नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल apply to precious metal articles specified in column 2 of the table in the following cases। यानी जो भी नोटिफिकेशन है ये जो केसेस दिए हुए हैं इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, any articles meant for export which conforms to any specification required by foreign buyer। यानी एक्सपोर्ट पर्पज के लिए फॉरेन बायर की जो भी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है 1417 से अलग हो, तो उसके लिए जो भी आर्टिकल होगा उसमें हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं होगी। दूसरा, एन आर्टिकल विथ वेट लेस देन 2 ग्राम, कोई भी आर्टिकल जिसका वजन 2 ग्राम से कम है उस पर कंपलसरी नहीं होगा। तीसरा, एन आर्टिकल इज इन कोर्स ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू एन एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज पर ब्यूरो ऑफ, यानी बाहर से जो इंपोर्ट होके आया वो जो हॉल मार्किंग सेंटर को जा रहा है उसके ऊपर उस समय निश्चित रूप से हॉल मार्किंग नहीं लगा होगा तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। फिर एनी आर्टिकल विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मेडिकल, डेंटल, वेटरिनरी, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज,
यानी डेंटल, मेडिकल, वेटनरी, किसी साइंटिफिक काम के लिए या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो आर्टिकल होंगे उन पर हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं होगी। एनी आर्टिकल ऑफ गोल्ड थ्रेड, जैसे गोल्ड के थ्रेड से जो बने हुए आर्टिकल्स होते हैं, जिनमें कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसे भी आर्टिकल होते हैं अंदर कापर की वायर होती है, या फिर पूरा गोल्ड थ्रेड वाला, जैसे ये अपनी जरी है, सॉरी साड़ी या इस टाइप का कोई आइटम है, तो ये चीजें उसमें शामिल नहीं होंगी। और सबसे लास्ट में any manufactured article which is not substantially complete and which is intended for further, जो कि पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी हॉलमार्किंग जरूरी नहीं होगी। ये इतने एग्जाम्पशंस हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड वो मैं पहले ले लेता हूँ। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या टर्नओवर बेस पे भी कुछ संस्थाओं को या रिटेलर्स को इसमें छूट दी गई कि अगर इतना टर्नओवर होगा 2 करोड़ के नीचे तो उनको करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ है प्रावधान? प्रेजेंट नोटिफिकेशन में ऐसा कोई नहीं है। प्रेजेंट नोटिफिकेशन के लिए जो भी ज्वेलरी बेची जानी है, चाहे वो जितने भी कम टर्नओवर वाला हो या ज्यादा टर्नओवर वाला ज्वेलर हो, सबके लिए कंपल्सरी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ओल्ड ज्वेलरी पे रिपेयरिंग का काम आता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है? उसके ऊपर दोबारा तो मतलब, क्योंकि वो कस्टमर और ज्वेलर के बीच में बेसिकली सोल्ड तो नहीं हो रही, बेची तो नहीं जा रही है, वो तो रिपेयरिंग वर्क है, उसके लिए तो मैंडेटरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसको पुराने को गला के नया आइटम बनाया है और कस्टमर कराना चाहता है कि उसको दोबारा भी वो हॉलमार्क करा के दे, तो ज्वेलर करा सकता। जी सर, क्वेश्चन यहाँ पे है कब से एप्लीकेबल है, तो मैं बता दूं 16 जून 2021 से ये रूल एप्लीकेबल है कंपलसरी हॉलमार्किंग का। इनका कहना है कि इनकी एक ऑफिस, एक हेड ऑफिस और 3 ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे, तो क्या इनको 4 लाइसेंस लेना जरूरी है या 1 लाइसेंस से ये BIS करवा सकते हैं? बेसिकली जितने भी सेल्स आउटलेट होंगे, जहां से भी डायरेक्ट सेल हो रही होगी, वहां पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये है कि जिनके 5 या 5 से ज्यादा होते हैं वो नॉर्मली कारपोरेट लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें फिर पर आउटलेट 10% का छूट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन फीस। अदरवाइज एक शोरूम एक रजिस्ट्रेशन। होलसेलर को हम ज्वेलरी बेच सकते हैं, मतलब एक होलसेलर दूसरे सब होलसेलर को ज्वेलरी बेच सकता है क्या? इसमें ज्वेलरी बेचने में तो कहाँ उसमें वो है, ये तो कैटेगराइजेशन कहीं है ही नहीं कि कौन होलसेलर है। विदाउट हॉल मार्किंग, विदाउट हॉल मार्किंग इसको क्लियर जो वो एक्स्ट्रा जो गाइडलाइंस आएंगी इम्प्लीमेंट करने की, उसमें ये चीज कवर की जाएगी। जी सर। ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस और कंपाइल करके थोड़ी से हमको मेल करा दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है सर। जब 2 ग्राम से कम के सेल पे हॉलमार्किंग नहीं है तो क्या हम इनडायरेक्टली परमिट कर रहे हैं 2 ग्राम के से छोटे की ज्वेलरी को एनी प्योरिटी में बनाने की? अल्टीमेटली तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो सभी में लगता है ना। जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें अपने एथिक्स और जो हमारे बिजनेस एथिक है उसको ध्यान में रख के और हमारे कस्टमर्स की वैल्यू को और कस्टमर की रिपीट वैल्यू को ध्यान में रख के हमको निर्णय लेना ये नहीं है कि उसके ऊपर हॉल मार्किंग अगर की नहीं, मतलब मैंडेटरी नहीं है ये लिखा गया है। उसके बाद भी ऐसे पेंडेंट होते हैं पतले पतले से 2 ग्राम से कम के, जिनमें एडिक्वेट स्पेस है, तो लोग कराते हैं। टॉप ईयर टॉप्स होते हैं, काफी सारे आइटम होते हैं 2 ग्राम से कम के भी, उसमें भी कराते हैं।
जी, तो ये एक्चुअली 2 ग्राम से नीचे का एक्सेप्शन दिया है इसलिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, छोटे हाँ ज्वेलर्स को। बिल्कुल इसलिए नहीं कि आप हम कोई भी ज्वेलर्स कुछ भी उसमें क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति के हिसाब से नहीं है ये। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस से अपन दूर रहें। अगर ज्वेलर के पास होलसेलर के पास से हॉलमार्किंग होके आई है तो फिर उसको री हॉलमार्क करवाने की जरूरत नहीं है। होता ही नहीं है, री हॉलमार्क किसी भी स्टेज में नहीं होना, एक स्टेज में। पर ये हो सकता है कि अगर कोई जैसे कि बड़ा रिटेलर है उसको उसके पीछे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, इसके लिए वो वापस हॉलमार्किंग में देता है कि ट्रेसेबिलिटी ना हो पाए और यहाँ से कंज्यूमर के पास जो जा रहा है या होलसेलर से रिटेलर के पास जो जा रहा है उसमें उसकी फिर से डिफेस करना पड़ेगा। नॉर्मली 2-2 मार्क तो नहीं होने चाहिए। ये है कि जैसे होलसेलर, कई बार बड़े रिटेलर जैसे, या इवन पहले भी कल्याण ज्वेलर्स है या ये जॉय लुकास है, वो एक अपना एक्स्ट्रा अलग से वो रखते हैं मार्क, इम्बोसिंग करके, वो कर या सकते हैं। वो तो लोग रखते हैं, तो फिर जी। उस केस में वैसा फॉलो करना चाहिए। हॉलमार्क किया हुआ ऑर्नामेंट 2 साल नहीं बिका, उसको रिसाइकल करके कुछ और उसमें से बनाना है, तो उसकी कोई प्रावधान है इसमें? नया पीस अगर बनेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी न्यू पीस। अगर मेल्ट करने के बाद बना है तो रिसाइकिल करने के बाद वो फिर हॉलमार्क होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश ऑर्नामेंट और उसका जो अपन दूसरे ऑर्नामेंट्स के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट इसके साथ किया जाएगा। बिल्कुल। आई डोंट थिंक, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है सर, आप देख सकते हैं। हॉलमार्किंग इज पॉसिबल इन कॉपर बैंगल। कॉपर बैंगल का आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ है। अगर आप नहीं नहीं नहीं, वो अगर मतलब उसमें कॉपर बैंगल मेरे ख्याल से जिसके ऊपर सिंपली वो किया, कोटिंग किया हुआ है ना, गोल्ड प्लेटिंग, उसके ऊपर तो वो तो नहीं हो सकता। गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ आइटम कैसे हो सकता? ऑब्वियसली वो 2 ग्राम से नीचे में जाएगा। जैसे बैंगल्स होती हैं उसमें बाद में लाख भी वो कर दिया जाता है, लेकिन गोल्ड का वेट तो लिखा होता है कि इसमें गोल्ड कितना है, और मतलब टोटल वेट कितना है और गोल्ड वेट कितना है उस हिसाब से। लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है या गोल्ड प्लेटेड है उसके ऊपर तो नहीं होगा, वो तो फिर चीटिंग ही हो गई ना पूरी। हेलो, अगर और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बीच में जी वो। सर, इनका एक क्वेश्चन ये है कि मैं ज्वेलर हूँ, अगर मैंने सुबह एक ज्वेलरी बेची और पोर्टल पे मैंने रजिस्टर कर दिया किसी एंड कंज्यूमर या रिटेलर के नाम पे, बट वो रिटर्न होती है वो ज्वेलरी, तो पोर्टल पर से उसकी हिस्ट्री कैसे हटाएंगे? वो चूंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है, अगर आपने वापस रिसीव्ड बैक लिख वो कर दिया, री एंट्री कर दी, तो फिर वो बेच क्यों नहीं सकेंगे? फिर तो बेच सकेंगे। जी, तो उसको वापस अपने नाम पे री सिस्टम एंट्री में करके लेना है, सिस्टम में लेना है, वो तो नंबर ही वापस स्टॉक में री एंटर करना है, तो वो तो सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दिया ही जाएगा। ये तो दूसरे भी आइटम है, ट्रांसफार्मर का ही मेन कई बार होता है, ट्रांसफार्मर मैंडेटरी प्रोडक्ट है, वहां जाता है, फिर उसके बाद रिपेयर होने के लिए आता है, फिर वापस जाता है, तो ये चीजें तो हर नॉर्मल आइटम जैसे ही कवर होंगे। सिस्टम में एक तरह से दोबारा एंट्री करनी है। जी, अभी अगर रिपेयरिंग होने के बाद उसमें कुछ वेट में डिफरेंस आया एंड देन कंज्यूमर गोज बैक टू हॉलमार्किंग फॉर चेकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो क्या इसको क्लेम माना जाएगा? नॉर्मली तो ये है कि अगर आप ओवरऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से देखेंगे, तो अगर किसी भी चीज में रीप्रोसेसिंग हो गई है और चेंजेज हो गए हैं, तो फिर वो जितना वेट, इनिशियल वेट था जितने की उसने रिसीट इशू की थी,
वो उसी के हिसाब से कंसीडर होगा ना, उससे ज्यादा के लिए तो नहीं कंसीडर किया जा सकता। जी और वैसे भी दो चीजें होती हैं कि जब आप हॉल मार्किंग सेंटर में जाते हैं, मान लो अगर मुझे क्रॉस चेक कराने के लिए जाना है कि इसमें सही है, उतनी प्योरिटी है कि नहीं, तो मैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में तो जाऊंगा नहीं, मैं तो सिंपली XRF के बेसिस पर ही टेस्टिंग में गया तो फिर वेट और वो सारी चीजें डिफरेंट वैसे भी हो जाएंगी। और अगर वेट ऐड हुआ है तो उसकी वजह से XRF के रिजल्ट वेरी नहीं करेंगे, और वो भी माइनर अगर है। आगे जो भी क्वेश्चंस हैं अपने वो थोड़े प्रोसेस रिलेटेड है, so with your permission I will give pass on your number to our jewelers so that अगर प्रोसेस रिलेटेड कुछ है इनको क्वेश्चंस तो they can ask you directly। हाँ जी बिल्कुल। so जी so GJEPC की टीम ऑल पार्टिसिपेंट्स को एक सिंह साहब और सत्येंद्र जी का कांटेक्ट डिटेल देंगे, तो प्रोसेस रिलेटेड या आगे भी हॉलमार्किंग रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। I would request Malcolm Sarkari to please conclude the session with vote of thanks. ધન્યવાદ રજતજી। આજે આ વેબિનાર મારફતે આપ સૌને નવી હોલમાર્કિંગ પોલિસીનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું તે માટે શ્રી SK સિંહ સાહેબ અને શ્રી સત્યેન્દ્ર પાંડે સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। GJEPC ના રિજનલ ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા સાહેબનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમના સહકાર અને પ્રેરણાથી અમે નવા વિષયો પર વેબિનાર કરતા રહી જેમ જ્વેલરી સેક્ટરને સતત માહિતી આપતા રહીએ છીએ। શ્રી સલીમભાઈ દાગીનાવાલા, પ્રેસિડેન્ટ સુરત જ્વેલર્સ એસોસિએશન, શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, પ્રેસિડેન્ટ સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન અને શ્રી નિલેશભાઈ લાંગલિયા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વરાછા કતારગામ જ્વેલર્સ એસોસિએશન સાહેબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તેઓ સમયસર પોતાના મેમ્બર્સને માહિતી પહોંચાડી વેબિનારનું સફળ આયોજનમાં મદદગાર રહ્યા। GJEPC ગુજરાત રિજનના એસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર સાહેબ શ્રી રજતભાઈ વાણી, જેમના કોઓર્ડિનેશન અને ક્રિએટિવ એક્સલન્સથી આ વેબિનાર શક્ય તેમનો હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। હાજર સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તેઓ સમય કાઢી આ બહુ મહત્વનો વેબિનારમાં હાજર રહ્યા। આ સાથે આ વેબિનારને આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। Thank you Malcolm bhai, thank you Singh sahab, thank you Pandey ji, Salim bhai, Nilesh bhai, thank you so much, Dinesh sir thank you, Jayanti bhai thank you।